Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm a psychology mentor at Study Capital. As you know, forms have been out and there is a very big announcement for you people. I'm sure अभी तक आप लोग को पता चल गया होगा, but if not, I'm here. So we have launched our all new Dhurandhar batch because obviously we should follow the trend, right? So everyone is watching Dhurandhar movie. It's a blockbuster on box office. Now it's time to make a blockbuster preparation for a blockbuster exam, that is CUET 2026, which is going to be held in March. For now we don't know dates actually, but हमें ये बताया कि मार्च में फॉर्म का जो एग्जाम है वो हो जाएगा. फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट है आपकी वो है 14th January till 11:50 PM. ऑलराइट, इट्स नॉट 12 AM. आई एम श्योर संस्कार सर की वीडियोस आप लोग देख रहे होंगे रिगार्डिंग फॉर्म फिलिंग प्रोसेस, कैसे सब्जेक्ट कोड को गलत नहीं करना है एंड हाउ टू ऐड द करेक्ट डॉक्यूमेंट्स, कैसे सेंट्रल एंड स्टेट लेवल सर्टिफिकेट्स में गलती नहीं करनी एंड ऑल दोस थिंग्स. ऑलराइट, so there is one more special surprise for you people. So you know Dhurandhar batch is a crash course batch in which classes are going to be starting from 2nd of January for the most of the subjects, right? But this is psychology. Let me have you some special thing. So for the price of a crash course, we will give you the complete foundation course. All right. So this is not exactly a crash course. You will get the foundation course जो already start हो चुका है. We have some classes which are already done and there is lot more to cover. So कोई crash course नहीं होगा जिसमें आपको बहुत speed से चीजें पढ़ाई जाएंगी. But in the banner of crash course, you will actually get the complete foundation course जिसमें आपके basics to advanced सब कुछ clear करे जाएंगे. I'll be teaching you from scratch. You'll be having live classes daily. And अगर आपसे live classes मिस हो जाती हैं, जो classes आपसे मिस हो चुकी हैं, you will be also having recordings जो आप कितनी भी बार देख सकते हो. Other than this, you will be given the full length revision notes. So you don't have to make any notes because time is very precious. आप कब notes बनाने बैठोगे, कब उनको revise करोगे, that will take a lot of time. Alright. So किसी तरह से आपको notes नहीं बनाने हैं. You will be given PPTs also. जिनसे हम लोग पढ़ेंगे. These are the interactive PPTs, charts, diagrams, flow charts, all these things are available. You will be having access to topic basis test. So हमारे short topic basis पे test होते रहते हैं weekly basis पे, जिससे आपकी preparation का estimation आपको होता रहे and मुझे होता रहे. Other than this, you will be given access to all the PYQ bank. So CUET के, DU के, Pondicherry University, BHU, Jamia, GATE, सारे क्वेश्चन बैंक्स का एक्सेस आपको दिया जाएगा एंड यू विल बी गिवन एक्सेस टू ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट. ऑलराइट, सो बिना किसी एक्स्ट्रा पेनी के यू विल बी गिवन एक्सेस टू 15 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो कि एग्जैक्टली सीबीटी पैटर्न पे होंगे. यू विल बी हैविंग द कंप्लीट एनालिसिस, कहाँ पे आपका लैग रहा, कौन से टॉपिक पे आपने ज़्यादा टाइम कंज्यूम किया, व्हाट इज योर कंपैरेटिव रैंकिंग, एवरीथिंग विल बी देयर इन द ऐप. इन्हीं साथ you will be having my personal WhatsApp number. You will be personally attached to me, which means कि आपको किसी भी moderator, किसी भी mediator, किसी भी Google form की ज़रूरत नहीं है. You will be in direct contact with me. You can ask your doubts, you can ask your problems, you can ask the topics, questions, whatever you want directly to me. So this is all with respect to Dhurandhar batch, which is aka Sankalp batch. Alright, previously it was known as Sankalp batch, but as you say, we should follow the trends. So we have launched a new crash course, that is Dhurandhar batch. But remember this thing, this is technically not a crash course. This is a full-time foundation batch. So in the price of crash course, you are getting full foundation batch. Alright, कैसे इसको ज्वाइन करना है, I'll tell you details. But सबसे बड़ी प्रॉब्लम अभी आपके पास क्या आ रही होगी regarding PYQs or for sake MCQs, right? तो सबसे बड़ा क्वेश्चन अभी हमारे पास ये आ रहा है that sir we have completed the syllabus, at least most of you, and we are right now going through the PYQs or the MCQ part. Sir, the problem is we are not able to solve the questions, है ना. ये सबसे बड़ी हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है अभी कि we know the topic, we know the theory, we know answers between these two options, but then also we are confused. So in today's video, I'm gonna be telling you a detailed, scientifically proven, step-by-step guide for you to solve the MCQs or any BYQs. I'll be telling you what strategy I followed, which made me secure all India
ranks in top of the universities such as University of Allahabad, such as Pondicherry University, Delhi University, BHU, Jamia. I've cracked UGC NET JEE examination. I've also cracked UGC JRF and then GATE examination. So ये सारी चीजों में मैंने क्या क्या चीजें फॉलो करी. I'll be telling you complete strategy. So the first step is you have to build the foundation. So आपको सबसे पहले अपना foundation build करना है. How to build the foundation? It is basically using textbooks. Alright. So आपको कई सारी चीजों का ध्यान रखना है and these will be very basic things. But again, basic चीजें कोई follow नहीं करना चाहता है. That's the harsh reality. So you have to follow the textbooks, right? आपको basic textbooks follow करनी पड़ेगी. You can follow any textbook such as Disraeli, Morgan and King, Barron, any NCERTs. Personally मैं NCERTs recommend नहीं करता हूँ, but if you want, you can. There is no, compulsion. Personally मैं NCERTs prefer नहीं करता हूँ because number one, NCERTs are little boring to study because they don't have much interactive diagrams and all those things, right? So for a newcomer, it may look little boring. बाकी books में diagrams, flowcharts and all these things तो वो थोड़ा सा interactive होती हैं. इसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? You don't get the complete knowledge, conceptual clarity नहीं होती है, तुरंत ही आप लोग PYQs पे जंप कर लेते हो, राइट? किस लिए जंप करते हो? सर आई वांट टू चेक माय कॉन्फिडेंस. रिजल्ट क्या होता है? कॉन्फिडेंस गोज डाउन. सो जब पता है कि कोई चीज हमें नहीं आ रही है, so there is no actually benefit, right, to try that thing. We know we are going to fail in that thing. So it's better कि आप पहले अपनी foundations को build करें. You have to make your base really strong. Because अगर आप लोग PYQs देख रहे होगे recent years के, you have seen that questions are not very like you can say high-end questions. बहुत ही advanced, complicated questions नहीं आ रहे हैं except few. Most of the questions will develop upon your conceptual clarity, right? अब इसमें आता क्या क्या है, राइट? कैसे हम कंसेप्चुअल क्लैरिटी को डिफाइन कर सकते हैं? सो इट इज डिफाइंड बाय सम ऑफ द कीवर्ड्स सच एज you have to understand the definitions of the concepts. What is the definition of intelligence, memory, language, cognitive learning, all these things. You have to know what are the associated theories and किन्होंने उन theories को दिया था. You know NTA's favorite question, which theory was given by whom, है ना? ये theory किसने दी? बहुत questions आते हैं इससे. Then you have to remember the stages, right? So many theories have stages. Kohlberg stages, Piaget theory, Erik Erikson, Freud, memory processing, information processing, right? You all have stages in the theories. Again, the favorite part. That is where the analysis of the PYQ is very important, right? Time नहीं है आपके पास सारी चीजें पढ़ने का. You have to only read what is being asked. सिंपल चीज है. हार्ड वर्क नहीं करना है सर. स्मार्ट वर्क के साथ हार्ड वर्क करना है, राइट? तो स्मार्ट वर्क करो. जो एग्जाम में जिस तरह से पूछा जा रहा है, यू हैव टू स्टडी दैट थिंग ओनली, राइट? तो स्टेजेस बहुत बार पूछता है CUET, राइट? अरेंज दीज फॉलोइंग क्वेश्चंस और अरेंजिंग फॉलोइंग एंटिटीज इनटू द करेक्ट ऑर्डर. इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, राइट? देयर आर फेमस एक्सपेरिमेंट्स. बोबोडॉल एक्सपेरिमेंट, Milgram's experiment, prison experiment, all these experiments are very important. ये experiments कुछ theories से related हो सकते हैं. They can be related to some topic and all those things. ये आपको पता होने चाहिए. And as I said, theorist, right? किसने ये theory दी? ये सारी चीजें आपकी conceptual clarity build करती हैं. And remember, this will be not a one-day phenomena, right? Please ये expect मत करना कि एक दिन किसी आपने theory को पढ़ा and you expect yourself कि आपको याद रहे. नहीं, ऐसा नहीं होता. You have to revise these theories n number of times. नहीं याद होगा तो भी तो लिख लिख के आपको याद करना है, right? You cannot be relying on this thing कि हमने तो पढ़ लिया, हमें याद नहीं हो रही. ऐसे याद नहीं होता है. You are a psychologist and you have to understand the limits of human cognition. इस तरह से एक बार में चीजें याद नहीं होती हैं. Alright? So this is the first step. You have to build the conceptual clarity. Second thing, you have to solve PYQs with a special 3-step technique. 3 स्टेप में आपको MCQ और PYQ सॉल्व करना है. Whenever I say you have to solve MCQs, people assume that sir हमें तो पढ़ा ही नहीं है कुछ, हमें तो उसका आंसर ही नहीं आता, हम कैसे सॉल्व करें? बच्चे, I'm trying to say that you have to solve the questions. I'm not saying that you have to make them correct. ना, there is a difference. इस चीज में समझिए.
आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, बेसिकली यू हैव टू रीड द एमसीक्यू, यू हैव टू अंडरस्टैंड द पैटर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिमांड, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड, देन यू शुड रीड द ऑप्शंस, you have to try, remember you have to try to connect the options to the question. I'm not asking you कि आप एकदम सही आंसर फाइंड आउट करो, सब कुछ सही कर लोगे तो फिर जरूरत क्या है प्रिपरेशन की. दिस इज व्हाट प्रिपरेशन लुक्स लाइक. You learn how to get the right answer, right? So please do not think like that कि PYQ solving से मेरा मतलब होता है कि आपको PYQ का right answer पता होना चाहिए. That is the result. When you will correct some question, that is the result actually. वो consequences है किस चीजों के, the efforts you are putting right now. तो ये efforts मैं आपको बता रहा हूँ. After that you will get that result कि आपका MCQ सही हो रहा है. प्रॉब्लम क्या है, आप efforts को छोड़ देते हो, right? आपको पता भी नहीं efforts क्या है, and you rely on consequences. सर PYQ सॉल्व के नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा सर, टॉपिक नहीं पढ़ा हमने. तो दिस इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग कि अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी स्टेप नंबर 1 नहीं क्लियर है, सो PYQ तो वैसे भी सॉल्व नहीं होने वाला है, राइट? PYQ और MCQ. But there is very important thing when you are solving the PYQ. What is this thing? Cycle number 1, that is recognition. You know that objective questions uses the technique of recognition, right? तो आपको recognition की टेक्निक यूज करनी है. It means you have to guess what is the right answer, right? You have to just look at the PYQs, obviously, without looking at answers, right? इसके बाद आपको देखना है कि पैटर्न्स क्या पूछे जा रहे हैं. You don't have to rely on accuracy actually. कितने करेक्ट हो रहे हैं, राइट हो रहे हैं, इसका अभी कोई लॉजिक नहीं है. यू हैव टू लुक फॉर दी पैटर्न्स, इन व्हाट वे दे आर आस्किंग क्वेश्चंस. देयर इज अ टॉपिक ऑफ Piaget's cognitive development. व्हाट आर द क्वेश्चंस व्हिच आर गेटिंग रिपीटेड, व्हाट आर द थीम्स. Piaget की थ्योरी बहुत बड़ी है, उसमें से क्या क्या पूछा जा रहा है ये आपको माइंड में गो थ्रू करना है. तो बोलते हैं ना बर्ड्स आई व्यू, यू हैव टू गेट दैट. देन द सेकेंड स्टेप यू गो फॉर करेक्शंस, है ना. दिस इज द सेकेंड स्टेप. फर्स्ट स्टेप पता ही नहीं होता है किसी को, करते ही नहीं है. सेकेंड स्टेप पे सीधे आ जाते हैं. सेकेंड स्टेप इज एक्चुअली करेक्शन. यू हैव टू ट्राई टू करेक्ट द आंसर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्टेज नंबर 1 एंड दिस फर्स्ट थिंग्स. तो आपको क्वेश्चन को करेक्ट करने पे ध्यान देना है. नाउ फॉर सम रीजन इफ द आंसर इज रॉन्ग, आपने चेक किया आंसर इज रॉन्ग, आई टेल यू कैसे चेक करते हैं. If the answer is wrong, so you have to convert those mistakes into some reliable information. You have to memorize and integrate the knowledge. मतलब सही जवाब क्या था, you have to remember that thing and you have to integrate that thing into your memory, into your knowledge, right? You can use flashcards, you can use one line notes. This is my favorite. One line notes बना लिया, फिर कोई चार्ट बना लिया आपने, कोई डायग्राम बना लिया आपने, right? Trust me, if when I'm saying this thing, मेरे पूरे प्रिपरेशन के नोट्स दे वर हार्डली 30 pages, right? In that 30 pages I cracked all the PG entrances, secured all India ranks, I cracked GATE psychology, I cracked UGC NET JRF exam with those 30 pages of notes. अब आपको ये नहीं समझना है कि मेरे पूरे के पूरे नोट्स 30 pages में आ गए. नो, everything was here. In those 30 pages, only that information was there with the very शॉर्ट एंड मिनिमम वर्ड्स. कम से कम वर्ड्स में लिखना था मुझे वो सारी इंफॉर्मेशन जो मैं भूल जाता था. सपोज देयर वाज एन थ्योरी एक्स, किसने दिया था, मैं बार बार कंफ्यूज करता, आई रोट इट डाउन. आई वाज गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन द स्टेजेस ऑफ सम थ्योरी, आई जस्ट रोट इट डाउन, राइट? सो मेरे पूरे के पूरे नोट्स एक्चुअली 30 पेजेस में हो गए. दैट्स व्हाई व्हेनेवर समवन आस्क्स मी सर आपने नोट्स शेयर कर दो, आई ऑलवेज से दें कि मेरे नोट्स कोई काम के नहीं है, बिकॉज दोज नोट्स वर मेड फॉर माई पर्पस. मुझे पता था उसमें क्या लिखा है, राइट? सो नोट्स में आप लोग ये ध्यान रखो कि अपनी खुद की पूरी बुक नहीं प्रिंट करनी है आपको. यू हैव टू व्हाट, यू हैव टू मेक योर नोट्स वेरी कंसाइज, वेरी मिनिमल वर्ड्स, सिर्फ आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है. देन द बेस्ट पार्ट विच आई कीप ऑन सेइंग, चैट जीपीटी यूज करो, जेमिनी यूज करो. कैसे यूज करते हैं आई टेल यू. सपोज यू आर सॉल्विंग सम क्वेश्चन एंड यू डोंट गेट द राइट आंसर, राइट? आंसर की ऑब्वियसली है नहीं, एंड है तो रिलाई मत करना उस पर. Trust me when I'm saying this, I have experience in this thing, right? आंसर की इस पर रिलाई मत करना. काफी सारे आंसर्स गलत होते हैं, आपको लगेगा आंसर की सही है, आप याद कर लोगे, एग्जाम में गलत करके आ जाओगे, ठीक है? आंसर की इस पर डायरेक्टली रिलाई मत करना, राइट? सपोज आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आपने आंसर की देखा इसका ऑप्शन ए है, आपने कहा अच्छा ए है इसका आंसर, ठीक है. जस्ट आस्क योरसेल्फ दिस थिंग, डू यू रियली डैम रिमेंबर दिस थिंग? ऑब्वियसली नॉट.
आपको नहीं याद रहने वाला है कि इसका आंसर ए था कि क्या था, until unless you will put some effort. हमेशा याद रखो, आपको वो चीज याद रहेगी जिसमें आपने एफर्ट दिया है. That's a very common sense thing, right? कैसे एफर्ट देना है? सिंपल थिंग. हमारे टाइम पे तो कुछ नहीं था ये सब. मतलब मैं इतना कोई पुराना नहीं हूँ, बट बैक इन 2021 चैट जीपीटी और ये सब कुछ नहीं था वहाँ पे, राइट? वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ अदर वर्क्स टू गेट द आंसर्स राइट. सिंपल से आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, अपना गूगल ऑन करो, गूगल लेंस, देयर इज अ फीचर, राइट? गूगल लेंस, उस पर फोटो डाल दो. यू विल गेट द आंसर and explanation also. So you will get two things. You will get the answer of that question and you will also get the explanation, the extra part कि theory क्या है, किस बारे में है, कैसे इसका आंसर ये है, why not other three options are the right answer. सब कुछ आपको मिल जाएगा. Just read it. I know this will take 5 to 10 minutes for just one question. Suppose you are solving 100 questions, right? उसमें से 30 questions आपके गलत हुए, right? सपोज आपने रफली 5-6 मिनट लिया एक क्वेश्चन को करेक्ट करने के लिए, इट विल बी समवेयर अराउंड 2 आवर. सो अगर आपके रोज के 2 घंटे एनालिसिस में जा रहे हैं एंड समवन इज सॉल्विंग 300 क्वेश्चंस पर डे, आई कैन गारंटी दिस थिंग कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो ज्यादा बेटर चल रही है. Just do not focus how many questions you are solving. Try to analyze the question. See, analysis वाला part कोई नहीं करता है. Trust me, the day you will start analyzing your mistakes, you will see the change. आपने आई एम श्योर अभी तक हजारों क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, बट यू डोंट फील लाइक द कॉन्फिडेंस, यू आर कमिटिंग मिस्टेक्स अगेन एंड अगेन. दिस इज द मेन रीजन. आप एनालाइज नहीं कर रहे हो कि मिस्टेक्स कहाँ पे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं. ये चीज करनी है, राइट? नाउ आई टेल यू कि कैसे एमसीक्यूज में आप क्या क्या टेक्निक्स को यूज करते हो टू सॉल्व द एमसीक्यूज. बेसिकली फर्स्ट इज मोस्ट फेमस एलिमिनेशन टेक्निक, राइट? अब एलिमिनेशन टेक्निक हम करते कैसे हैं? फर्स्टली यू हैव टू आइडेंटिफाई द फोकस. मैं हमेशा अपने बैच में बोलता रहता हूँ, हर एक थ्योरी का कीवर्ड होता है एंड क्वेश्चन विल बी ऑलवेज आस्क्ड फ्रॉम द कीवर्ड्स. तो हर एक चीज में आपका कीवर्ड होता है एंड उसी कीवर्ड से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है. तो हैव टू रिमेंबर द कीवर्ड्स. सो अब ये चीज करते कैसे हैं? देखो, कीवर्ड को आइडेंटिफाई करना होता है दैट ऑलवेज फोकस ऑन दीज वर्ड्स, नॉट, राइट, नेवर, ओनली. ये सारे कीवर्ड्स होते हैं. ऑल्सो देयर आर सम अदर काइंड्स ऑफ कीवर्ड्स, जैसे थ्योरिस्ट टू द डोमेन, मतलब कौन सी थ्योरिस्ट ने क्या थ्योरी दी है. जैसे ह्यूमनिस्टिक, द मोमेंट यू विल हियर द वर्ड ह्यूमनिस्टिक, रॉजर्स क्लिक करना चाहिए. द मोमेंट यू विल हियर द वर्ड एग्जिस्टेंशियल, फ्रैंकल क्लिक करना चाहिए. द मोमेंट यू विल हियर द वर्ड साइकोडायनामिक, फ्रॉइड, एडलर, यंग क्लिक करना चाहिए. द मोमेंट यू विल हियर द वर्ड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एडलर क्लिक करना चाहिए. ये सारे कीवर्ड्स होते हैं. देन यू कैन फोकस ऑन रिमूविंग द ऑड वन आउट ऑप्शंस. जैसे क्या ऑप्शंस गलत लग रहे हैं. Suppose the question is asking about the memory and there are 2 options which are from intelligence. You know कि intelligence and memory का link है, but these are not very much related. So eliminate those options. Now you have only 2 options, 50-50 chance, right? Earlier you were having 25% chance. Now you can have a guess of 50%. 2 ही options बचे आपके पास. Now just look for कि ज़्यादा accurate क्या है. Just remember this thing. ये एक मंत्र है. MCQ is not about the correct answer. MCQ is about the most accurate answer. Remember this thing. MCQ में करेक्ट आंसर क्या है इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है. MCQ में सबसे एक्यूरेट आंसर क्या लग रहा है आपको, ये इंपॉर्टेंस होता है. मतलब कि 2 क्वेश्चंस या 2 ऑप्शंस हैं, यू मे फाइंड कि दोनों ही सही लग रहे हैं, टिक तो एक ही करना है, तो उसमें से ज्यादा एक्यूरेट जो होगा वो टिक करोगे आप, ठीक है? और यू कैन डू वन थिंग, जस्ट लुक एट द ऑप्शंस फर्स्ट, फिर उससे थ्योरीज कनेक्ट करने की कोशिश करो. कभी कभी ऐसा होता है दैट वी डोंट अंडरस्टैंड द थ्योरीज, राइट? क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो समझ नहीं आता है. ऑप्शंस को पढ़ो. ऑप्शंस पढ़ के आपको एक हिंट मिल जाएगा क्वेश्चन किस बारे में है. सो मे बी इट कैन क्लिक सम बेल्स, राइट? फिर वीकली मॉक टेस्ट दो, जैसे मेरे बैचेस में भी होते हैं, टॉपिक बेसिस पे मॉक टेस्ट होते हैं. यू विल बी हैविंग 15 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जिसमें से आपको 10 वीडियो के वीडियो एक्सप्लेनेशंस भी दिए जाएंगे, राइट? With answer keys and all those things. So आप लोग को ये सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा. You have to make a error let improvement. Means you will be committing mistakes. That is a very natural thing. उन मिस्टेक्स को एनालाइज करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया था, ठीक? फिर स्पीड के लिए, एक्यूरेसी के लिए आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसको हम FLT कहते हैं, वो प्रैक्टिस करने पड़ेंगे.
राइट, जैसे आई सेड कि जैसे 15 मॉक टेस्ट हम लोग देने वाले हैं. अदर देन दिस, सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी एरर नोटबुक. इन दिस बुक यू हैव टू राइट ऑल द एरर्स, ऑल द मिस्टेक्स यू आर कमिटिंग, राइट. जैसे किसी टॉपिक में आप कोई मिस्टेक कमिट कर रहे हो एंड इट इज क्वाइट फ्रीक्वेंट, उसको नोट डाउन करो, क्या मिस्टेक है, क्यों है, क्या उसका करेक्ट आंसर है. डेफिनेशंस, कोई एग्जाम्पल हो गया, कोई कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई, राइट. कोई चीज में कंफ्यूजन हो रही है कि यू आर गेटिंग कंफ्यूज बिटवीन यंग एंड एडलर, जस्ट राइट इट डाउन व्हाट इज द कंफ्यूजन सो दैट यू वॉन्ट गेट कंफ्यूज. और उस एरर बुक को 2-3 बार रिवाइज कर लो, राइट. सपोज यू आर स्टडिंग 5 days अ वीक, ठीक है, 2 दिन इधर उधर कर ले रहे हो. 5 days में एटलीस्ट 3 दिन अपनी एरर बुक को रिवाइज करो, क्या क्या मिस्टेक्स आपने करी हैं उसमें से. ऑलराइट, सो दिस वाज ऑल फॉर द एमसीक्यूज. अगर आपको और भी कोई भी डाउट होता है रिगार्डिंग एमसीक्यू, रिगार्डिंग पीवाईक्यू और एनी अदर डाउट, you can ask me in the comment section. I'll be happy to reply it. All right, तो comment section में आपको कोई भी डाउट है regarding psychology, regarding preparation or regarding the batches, you can ask me in the comment box. And lastly, you can download the Study Capital app. There you will see a section like this and you have to click on this CBT PG crash course, that is Dhurandhar series, which is the संकल्प बैच. वहां पे आपको ये क्रैश कोर्स दिख जाएगा, that is the Dhurandhar batch, which is संकल्प batch. Again I am saying you are not getting exactly a crash course, it is much more than a crash course. It is a full length foundation course जिसमें चीजें डिटेल लेवल में पढ़ाई जा रही हैं. एंड ट्रस्ट मी, यू हैव इनफ टाइम राइट नाउ. बट अगर अभी देर किया तो बहुत देर हो जाएगी. राइट नाउ यू आर गेटिंग दिस कोर्स व्हेन आई एम अपलोडिंग दिस वीडियो अराउंड द क्रिसमस. राइट नाउ दिस कोर्स इज समवेयर अराउंड 3400, but there is a surprise. You will apply the coupon code available there and you will get instant 1000 off. All right, ये सारी चीजें आप लोग को मिल रही हैं with a very minimal price and trust me, the quality is top notch. All right, you can check out our other YouTube videos. You can download the demo videos from the app and you can join the live classes right now. See you soon in the next batch and see you soon in the next video. Thank you.